Yeah. So for now, we'll do our simulations on Tinkercad, and it's an online platform, web application where you can design your yeah. So you can design your circuits here. Also, it's good for programming as well. Like if you want to draw shapes using programming, so you can get a hold of that as well. And this is also for designing some basic uh, stuff. So you can all do all programming, designing, and electronics on the same platform. And so how to begin with this, I'll tell you. Yeah, so those who have Fritzing running can perform the same things on Fritzing, but because like many were complaining about Fritzing not working, so like this is an alternative. So what you have to do is you just have to sign in. So it will ask you whether to sign in using Gmail or Apple or any other Autodesk account. So I'll sign in using my Google account. Yeah. So you can select your Gmail account with which you want to log in to Tinkercad. So you'll be brought down to this dashboard where you'll have certain options. So there are a few options that you can use to study. Then these three are the main options where you can develop something. This one is for 3D design, this one is for circuits, and this one is for programming. So we'll go on to circuits and create a new circuit. Click on create a new circuit. So this is your development screen. Okay, so there are few options to rotate, delete, undo, redo, then annotation and viewing it or hiding any particular object. All your equipment, electronic equipment are here. You can search it. So there's a drop down menu for basic, all Arduino based circuit assemblies, etc. You can export if you make a design, you can export the circuit uh, here, or you can share it with your friends and on the same platform. So when your circuit is ready, you can start the simulation and see how the circuit is working. And if you're using Arduinos, so you can like you can go onto the screen and program for Arduino or any other microcontroller that you're using to create your circuit. It's very basic. All stuffs are given here, and yeah. Okay, so let's start with the basic things that we have done so far. So the first thing was you're trying to glow an LED using a small cell. Okay, so we'll do that. So although I can see, so what I'll do is I'll drag and drop into the center. Okay, so so on the right you'll see all the components that you require to create your circuit. And when what you can do is you can search. So let me search again, LED. Okay, so there are two options now. In fact, there are more options. So this one is the basic LED, and this one is an RGB LED, red, green, and blue. So this can glow in three colors. Okay, so let's drag and bring this one here as well. Let me increase the size. So when you click on the equipment, you can either name it. Let's say this is my basic LED, just for my reference. And this let me name this my RGB LED. Okay, cool. So like in the basic LED, I have an option to change the color as well. So I guess red is fine. And here I don't have any option because it is an RGB LED. It will glow in three colors, R, G, and B. So now these are the terminals. आप यहाँ पे terminals देख सकते हैं. If I'll just mouse over onto this terminal, so it says red. This one says cathode. That means it is the ground or negative. Okay. This one is for blue and this one is for green. Now let's put this one aside
and bring this one in focus. Now let's do one thing, because this is a passive device. ठीक है, ये एनर्जी लेता है. नाउ टू पावर दिस वी हैव टू इंट्रोड्यूस एन एक्टिव डिवाइस टू द सर्किट. एंड एक्टिव डिवाइस का काम क्या होगा? टू गिव या टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट. एंड सच डिवाइस जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गई. सो लेट्स फाइंड आउट इफ वी हैव सर्टेन सेल अवेलेबल विद अस. सेल. ओके, सो दिस वन इज अ कॉइन सेल. इसको ड्रैग करके अंदर ले आते हैं. सो दिस वन इज अ कॉइन सेल. ये आपने देखा भी होगा, बटन सेल भी कहते हैं, कॉइन सेल भी कहते हैं इसे. दिस वन इज ऑफ 3 volts. यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन है. दैट मीन्स दिस वन इज पॉजिटिव, और माउस ओवर करने पे वो बता भी रहा है कि दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव. नाउ इफ यू लुक हियर, यहाँ पे भी दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड. जो ये टेढ़ा से जा रहा है, दिस इज अ लॉन्गर पिन, और यहाँ पे हम पॉजिटिव करेंगे, या एनोड में डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एनोड में हम पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे एंड कैथोड में हम नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. let's do it in other way. Yeah, so let's do it wrongly first. So let's try to connect. So what I did was I clicked on this terminal. मैंने कैथोड पे क्लिक कर दिया. एंड अगर मैं माउस हिलाऊंगा, अगर कहीं मूव करता हूँ, तो आई सी दैट देर इज अ ग्रीन लाइन which is being formed. So what I'll do is I'll neatly go, like मैंने थोड़ा सा लेफ्ट मूव किया. I will click once here. लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे. अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे जाके एक लेफ्ट क्लिक करूंगा. I'll go on the left again and say click here. Now I'll come down. एंड जब दूसरा टर्मिनल हाईलाइट हो जाता है जहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, आई क्लिक हेयर. और जैसे ही टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्शंस हो गए, ये ऑटोमेटिकली ड्राइंग मोड से हट जाएगा एंड ये जो वायर है उसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई ड्रॉ अनदर वायर अगेन. सो आई स्टार्ट विद एनोड. आई क्लिक इट, go down, click here, go on to the left, click here and then finally go upwards. ठीक है, जैसे ही टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्शन हो गया, द ड्राइंग मोड एग्जिट्स एंड हमारा सर्किट में जो वायर है वो ड्रॉ हो चुकी है. सो व्हाट आई हैव डन राइट नाउ इज, जो एलईडी थी उसकी छोटी पिन में या कैथोड में मैंने पॉजिटिव दिया है एंड बड़ी पिन में मैंने नेगेटिव दे दिया है, जो हमें थ्योरेटिकली पता है शुड नॉट वर्क. नाउ विल व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट द सिमुलेशन एंड सी व्हाट हैपेंस. सो यहाँ पे अभी देखिए, वी डू नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग. द एलईडी इज नॉट ग्लोइंग. ठीक है. नाउ सो बेसिकली जो कनेक्शंस थे वो गलत थे, तो मैंने अभी गलत कनेक्शंस आपको करके बताए हैं. पॉजिटिव को नेगेटिव, लॉन्गर पिन को नेगेटिव के साथ एंड शॉर्टर पिन को पॉजिटिव के साथ. सो नाउ व्हाट आई डू इज आई मेक द राइट कनेक्शंस. सो अब राइट कनेक्शन मतलब क्या है कि मुझे ये जो कनेक्शन मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ वो हटाने पड़ेंगे, मुझे वायरिंग हटानी पड़ेगी. सो आई क्लिक ऑन द वायरिंग दैट आई वांट टू रिमूव एंड देन प्रेस डिलीट बटन. अगेन क्लिक किया जो वायर को मैं करना चाहता हूँ डिलीट, और मैं डिलीट बटन को प्रेस कर दूंगा. और यहाँ पे भी ऑप्शन है डिलीट करने का. लेट मी डू दैट फर्स्ट. सो इसको क्लिक किया एंड द वायर गॉट डिलीटेड. नाउ लेट मी चेंज द पोजीशन, ब्रिंग इट हियर and let me draw connections now correctly. So anode, which is the longer pin, should go on to the positive terminal. Positive. And the shorter pin, which is also known as cathode, should go on to the negative terminal. Okay, so the connections are complete. दोनों wires draw हो चुकी हैं. We can also change the wire. So usually क्या होता है, we connect जो ground से connect करते हैं हम usually black रखते हैं. So I'll do that. I'll change it to black and I'll change this one to red. ठीक है, रेड फॉर पॉजिटिव, ब्लैक फॉर नेगेटिव, ताकि जो यूजर हो या थर्ड पर्सन हो उसको देखने में आसानी हो, इजीली समझ में आ जाए कि व्हाट इज दैट वायर मीनिंग. ठीक है. सो द कनेक्शंस आर फाइन. लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन. ओके.
Okay, so you may see that the LED starts to glow. ठीक है, the LED starts to glow. Okay, how to use this app in phone? In phone, I checked few apps, but those apps were not good. तो इस वजह से like there were few apps जो ठीक ठाक काम कर रहे थे, but they were not that good. So it's better to like use a laptop for this. And जितने भी आगे आप PCB डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी होंगे वो भी they work well on smartphones, sorry, laptops and computers. So you can try to search for apps जो होते हैं circuit designing के लिए, and let me also know. The lecture is getting recorded. And भैया भैया यहाँ फ्रिट्जिंग के अंदर कैसे इसमें रन कराएंगे? मैंने कनेक्शन तो कर दिया, आप रन कैसे कराएंगे सर? फ्रिट्जिंग में आपको सिमुलेशन मिलता है क्या? I'll just quickly check. पता नहीं भैया। एक second, I'll just check it quickly. फ्रिट्जिंग में एक आपको सिमुलेशन का बटन दिखेगा, you just have to click that. Okay, आज इस पे फोकस करते हैं. सही बात है यार। और बता, मम्मी को छोड़ी आई? मानशु प्लीज माइक म्यूट कर लो. याद आ रही है मम्मी की? अच्छा, आपने अभी एक चीज नोटिस की होगी कि जो एलईडी है, एलईडी के साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है विच इज अ वार्निंग. फिर तू फिर क्या करेगी आज पूरे दिन? ओके, तो यार एलईडी पता नहीं पापा आवाज लगा रहे थे यार, सो नीचे से बेंच। हिमांशु, पागल है, मैं क्यों जाऊंगा? घर लगाते रहे आवाज, चला जाऊंगा जब नीचे जाऊंगा, कह देंगे किसी का। हिमांशु, फिर नींबू पानी मंगाऊंगा दीदी से, नींबू पानी लेके आएगी जब जाओ। फिर मैं नहीं जाना यार, वही दे जाएगी, आएगी कमरे में जब आएगी कह दूंगा दे जाएगी। तू दे दे बना के। ओके, या सर क्लास ज्वाइन करने के लिए डोंट हैव टू क्लास, you don't have to join the class on Tinkercad. आप Tinkercad पे सीधे लॉग इन करिए and you start creating your own stuff. You don't have to join the class there. ठीक है, एंड जस्ट साइन इन एंड आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, क्लिक ऑन टू सर्किट्स, वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं क्रिएटिंग योर ओन सर्किट. ठीक है, सो दिस लाइक लेट्स गो बैक टू दिस सर्किट नाउ, एंड वी सी एन एक्सक्लेमेशन मार्क विच इज अ वार्निंग, एंड द वार्निंग says that the current through the LED is 61.9 milliamperes, while recommended maximum is 20 milliamperes. The usable life of the LED may be reduced. तो आप जब normal circuits भी create करते हैं, so what we do, so what happens is, जो current एक maximum current होता है, जो maximum current होता है, एक जो एलईडी से जाना चाहिए वो एक फिक्स रहता है, वो आपको डेटा शीट से दिख सकता है. सो डिफरेंट एलईडीज, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइक डिफरेंट एलईडीज विल हैव अ डिफरेंट मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू इट. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस नाउ कि इससे जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता था दैट वाज 20 मिली एम्पियर्स, बट बिकॉज वी आर यूजिंग लाइक दिस अरेंजमेंट, इससे क्या हो रहा है, द करंट जो फ्लो कर रहा है एलईडी में दैट इज इक्वल टू अराउंड 61 पॉइंट, let me check again, it was 61.9 milliamperes, so almost 62 milliamperes. तो क्या करना चाहिए हमें? What we have to do immediately is to reduce the amount of current which is flowing through the LED. ठीक है, तो कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस। Yes. तो what we'll do is we'll add resistance to the circuit. ठीक है, so let's do that. So I'll go on to the right, search for resistor. Okay, so resistor यहाँ पे आ चुका है. Now let me remove this and I'll place this right here. Okay, let me draw the connection. So the shorter pin or the cathode goes to the resistor. The resistor से wire जा रही है नीचे, नीचे से इसने टर्न ले लिया, टर्न करके ऊपर. ठीक है,
I'll change the color again to black. Okay, that is done. This one also black. Yeah. अब रेजिस्टर है हमारे पास एंड लाइक वी कैन नेम द रेजिस्टर. ठीक है, रेजिस्टर को नेम कर सकते हैं R1 and we can also add the value of resistance, like we can edit the value of resistance. Currently it is 1k and this sign is ohms, so this is currently 1 kilo ohms. ठीक है, so what we'll do is इतना तो नहीं चाहिए होगा, so let's reduce it to say 100 ohms. Yeah, so यू विल नोटिस कि यहाँ पे जब हम वैल्यू चेंज करते हैं तो रेजिस्टर की जो यहाँ पे स्ट्रिप्स होती हैं उसका कलर भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो जैसे लेट मी चेंज इट टू से 50, सो नोटिस द कलर हैज चेंज. और इफ आई मेक इट 120 12 और 120, द कलर चेंजेस. सो जो लॉजिक रहता है कलर एंड नंबर का वो आप देख सकते हैं, but usually like practically no one measures, no one really look on the color code to check the resistance. आप usually क्या करते हैं, आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं. ठीक है, तो let me put the resistance to say 100 ohms and again run the simulation and see what happens. Okay, so now the LED is glowing and the warning sign has gone. ठीक है, the LED is glowing and the warning sign has gone. Now let me try to reduce this and see कि limiting जो resistance था वो कितना था. क्या 10 resistance में? No. So see, जब मैंने 10 resistance रखा, 10 ohm resistance रखा, there is a warning sign and the current is still greater than 20 and it is equal to 38.9. Let's make it 15 and the current is still greater than 20, it is 32.9. Let me increase to say 30. uh, okay, so it's closer to 20, so 30 ohms में हमें कितना करंट मिल रहा है, 22.6. let me increase to 36. okay, almost there. so the value is 20.1 milliamperes. so अगर 37 करते हैं तो वार्निंग चली जानी चाहिए. so yeah, the warning goes जब हम 37 ohm resistance रखते हैं. so now the question to you that you have to figure out is, यहाँ पे हमने अभी hit and trial से we put different values and हमें पता चला कि at 37 ohms, ठीक है, at 37 ohms जो है हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है एलईडी से, that is in a safe range. ठीक है, that is not exceeding 20 मिली एम्पियर्स एंड exactly 37 पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा मैं बता नहीं रहा हूँ. एनीवे, तो एक एमीटर लगा सकते हैं या मल्टीमीटर से हम पता कर सकते हैं कितना करंट इसमें जा रहा है. बट अभी क्वेश्चन वो नहीं, क्वेश्चन ये है कि हाउ यू विल फिगर आउट, हाउ यू विल गेट टू नो कि कितना रेजिस्टेंस जाना चाहिए, कितना रेजिस्टेंस यूज करेंगे ताकि एलईडी में जितना करंट जाना चाहिए उतना करंट जाए. ठीक है, सो दैट्स वन क्वेश्चन टू यू. ठीक है, यू हैव टू फिगर दैट आउट कि हम रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सर हमने ब्लैक वायर में ही क्यों ऐड किया है रेजिस्टेंस? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था कि हम ब्लैक वायर में ऐड करते हैं, वो सर्किट में कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो रेड वायर के थ्रू भी ऐड कर सकते थे, तो मैंने बस ऐसे ही ब्लैक वायर के थ्रू कर लिया. सो ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ब्लैक वायर में ही करेंगे या नेगेटिव से ही लगाएंगे, आप पॉजिटिव से भी लगा सकते हैं. As we have the voltage value and the current value shown by the warning, can we find that by Ohm's law? Yes, you can do that. You can try that. Ohm's law से पता कर सकते हैं. So yeah, that's what you have to figure out as homework. ठीक है. Let's move forward and let's delete this thing. Okay, let's delete this thing and add another device जो यहाँ पे हमें अभी दिख रहा है. It's a potentiometer. Okay. Let me rotate this. Yeah, so this is a potentiometer. Potentiometer basically क्या होता है, it's a 3-pin device जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा. ठीक है, तो इसमें देखो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड बीच में होता है वाइपर. ठीक है, वाइपर क्या होता है, वाइपर इज समथिंग
जो कनेक्टेड होता है एक मूविंग पार्ट से, जो यहाँ पे डायल होता है। तो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा, इट हैज सर्टेन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली एक बहुत लंबी वायर होती है जो बाउंड होती है एक जगह पे, एंड ये जो डायल है जो जिसको हम घुमाएंगे, तो वो डायल क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो मूव कराता है ऑन दैट बाउंड वायर। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है, क्विकली कनेक्ट दिस एंड जस्ट अ सेकेंड। सुनती नहीं है ना? ठीक है, so what happens is, या तो पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है कि एक कंडक्टर जो होता है, लेट्स लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इट विल हैव सर्टेन रेजिस्टेंस। इसको लेट मी इंक्रीज द साइज। ओके, so this resistance, this long resistance will have will have certain resistance. Let's say its resistance is R of the wire. Okay, अब क्या है कि we'll make certain assumptions. Assumptions क्या है कि ये जो wire है that is uniform in cross section, एक जैसी है, जो thickness है उसकी एक जैसी है। एंड हमें पता है कि जो resistance का फॉर्मूला होता है, जो resistance का फॉर्मूला होता है is equal to रो L over A। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको समझेंगे कैसे, सो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि इमेजिन करो कि बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ पाथ, देयर आर टू पाथ्स। ठीक है, तो एक ऐसा है और एक ऐसा है, लाइक तो लोगों को इसमें से घुस के जाना है, इसमें से एंड इसमें से। सो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों का, दैट इज द सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो लोगों को आसानी कहाँ होगी, पाथ नंबर 1 में या पाथ नंबर 2 में। ठीक है, तो पाथ नंबर 1 में लोगों को आसानी होगी, द रीजन बीइंग, सॉरी पाथ नंबर 2 में लोगों को आसानी होगी, रीजन बीइंग कि जो प्रॉब्लमेटिक जो पाथ है इसमें लंबा है, मतलब ज्यादा दूर तक प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे कम दूरी तक ही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो लोग प्रेफर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे कि इस पाथ से जाने का, बिकॉज दिस इज कन्वीनियंट एंड मोर इजियर एज कम्पेयर टू वन। तो इससे हमें समझ में आता है, सेम इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर लंबा पाथ दे दिया जाए रेजिस्टेंस वाला और एक छोटा पाथ दे दिया जाए रेजिस्टेंस वाला, तो छोटा पाथ में उसको कम प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स कंपेयर टू पाथ्स विच आर ऑफ इक्वल लेंथ but they differ in the area of cross section. So this is path number 1, this is path number 2। तो लोग यहाँ से या यहाँ से कहाँ से जाना प्रेफर करेंगे ज्यादा, वो यहाँ से जाना, सेकंड वाले से जाना प्रेफर करेंगे,
द रीजन इज कि यहाँ पे जो एरिया है जाने के लिए, मतलब अगर बहुत सारी भीड़ जाती है तो यहाँ पे इट विल बी कन्वीनियंट, क्योंकि यहाँ पे उनके पास स्पेस है मूव करने के लिए ज्यादा। So same is for electrons as well, कि electrons को अगर wider path मिले, wider area of cross section मिले to flow, तो उसमें resistance वो कम feel करेंगे। ठीक है, तो electrons के केस में क्या हुआ, electrons की अगर बात करें तो अगर उनका जो path है is wider, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का इट्स ब्रॉडर, तो क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहे होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे वो इजीली फ्लो कर जाएंगे। एंड इन द सेम वे अगर इट इज लॉन्गर तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इफ इट इज शॉर्टर तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज ज़्यादा प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर दोनों कंबाइन करके लिखते हैं, let me rub this portion. Yeah, so if we combine these two, and so we see that R is directly proportional to L and inversely proportional to A. Proportionality का sign हटाने के लिए we'll introduce equality sign with a constant K L over A, और यहाँ पे जो constant है is rho, which is what? Which is resistivity, और ये वेरी करती है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। सो दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये उसकी हो गया स्ट्रक्चर कैसा है, L upon A। ठीक है, now let's go back to this wire which is long, which has a certain cross sectional area which is uniform from starting to ending। ठीक है, तो अगर मैं सपोज एक टर्मिनल मैंने यहाँ फिक्स किया, लेट मी मार्क इट विद रेड, तो एक टर्मिनल मैंने यहाँ फिक्स किया, ठीक है, ये मेरा जो एंड है वो मैं मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर करने कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दूसरा टर्मिनल से मैंने इस जगह पे किया है, ये एक रिंग टाइप की है जो मूव कर सकती है, और वो रिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया मेरा दूसरा टर्मिनल मल्टीमीटर का या एक रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेड वाला टर्मिनल R और ये ब्लैक वाला टर्मिनल B, इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देयर इज समथिंग, दिस रिंग विच इज फ्री टू मूव ऑन दिस वायर। ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉकी कहते हैं, जब आपने पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर अपने 11th क्लास में या 12th क्लास में। एंड इस केस में पोटेंशियोमीटर के केस में जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं वाइपर। दिस वाइपर इज बेसिकली फ्री टू मूव, और वायर अंदर स्ट्रेट नहीं होती, यहाँ पे घूमी हुई होती है। तो देखो अब होगा क्या कि जैसे आप रेजिस्टेंस ये इस वाइपर को पास लेकर आएंगे, लाइक टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर आएंगे, सो यू विल नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। द रीजन इज जो लेंथ आ रहा है, देखो जो इफेक्टिव लेंथ आएगी, ये जो इफेक्टिव लेंथ आएगी वो कैसी होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम वाइपर को लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे, सपोज हमारा वाइपर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हमारा मेजरिंग टर्मिनल दूसरा वाला, तो देखो जो लेंथ, इफेक्टिव लेंथ जिसकी हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दैट इज दिस मच ओनली, इतना ही है केवल। ठीक है, एंड अब अज्यूम करते हैं कि हमारा वाइपर आ चुका है बिल्कुल एंड में, यहाँ पर है, और इस जगह पे हम मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट विल गिव अस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लेंथ इज, अगर लेंथ बिल्कुल बीच में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस का हाफ होगा। अगर वाइपर जो है वो क्वार्टर डिस्टेंस पे है फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, तो क्या होगा, वो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्वार्टर होगा। इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट द लेंथ इज जहां पे वाइपर हमने प्लेस किया है। ठीक है, वी नोटिस कि यहाँ पे जो है वो तीन है, देखो तीन पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक जहां पे हम रेड वाला ले रहे हैं, एक जहां पे वाइपर है, और एक जहां पे हमारा दूसरा एंड है वायर का। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के ये जो तीन टर्मिनल्स है वही बाहर निकले होते हैं। सो लेट मी गो बैक टू ब्लैक, या सो आपका ये पोटेंशियोमीटर कुछ इस टाइप का, यहाँ पे आपकी डायल हो गई है जिसको आप घुमा सकते हो। ठीक है, और उसमें आपको तीन टर्मिनल्स मिलेंगे, एक लेफ्ट टर्मिनल जो मैटर नहीं करता, तो लेट्स कॉल इट टर्मिनल 1, दूसरा टर्मिनल 2, एंड बीच में हमारा हो गया वाइपर। ठीक है, तो आप जब मेजर करेंगे रेजिस्टेंस या किसी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज आइदर ऑफ द टू कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन क्या हुआ, T1 और W का, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, T2 और W का।
मतलब वाइपर तो बेसिकली आना ही चाहिए बिकॉज यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेट्स गो बैक टू दिस थिंग। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन है सर? टिंकर कैड को ज्वाइन करने के लिए कोड, डोंट हैव टू ज्वाइन टिंकर कैड, आपको साइन इन करना है, आपको ज्वाइन नहीं करनी है क्लास वहां पे। ठीक है, आपको साइन इन करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग, डोंट हैव टू ज्वाइन अ क्लास ऑन टिंकर कैड। पुल दिस अप, delete this one. Yeah, I guess this is okay. ठीक है, so what we'll do is we'll try to use this potentiometer now. So this is terminal number 2, this is Viper, and this is terminal number 1. So here what I'll do is I will use two terminals, which is terminal number 2 and terminal number and Viper. So let me place it here. I'll start drawing, go down here, join here, and then use Viper, go down, right, above, and done. Okay, so this circuit is now complete. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड इस नॉब को घुमा के आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो लेट मी क्लिक ऑन टू दिस, एंड करेंटली दिस इज 250 किलो ओम्स का टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है ये। तो जब बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है तो इट विल प्रोवाइड मी 250 ओम्स, एंड बिल्कुल लेफ्ट में है वाइपर तो इट विल प्रोवाइड मी 0। सो यहाँ पे हमें 0 से लेके 250 तक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमें मिल सकती है। अब हमें पता है हमें अराउंड 37 चाहिए, सो लेट्स ब्रिंग दिस टू 100, एंड इंस्टेड ऑफ किलो ओम आई विल चूज ohms. ठीक है, now this potentiometer has a value, has a total value या net value of 100 ohms, which is the maximum resistance that it can provide. ठीक है, let's start the simulation and see what happens. So see, यहाँ पे जो डायल है आप घुमा सकते हैं, this is extreme low condition, मतलब अभी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है, सॉरी एक्सट्रीमली हाई कंडीशन थी, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, अभी 100 ओम्स आ रहा होगा। नाउ लेट मी गेट डाउन एंड ब्रिंग इट टू 0। सो यहाँ कहीं देखो इस जगह पे मुझे वार्निंग सिंबल आ रहा है, और 0 पे तो वार्निंग सिंबल आएगा ही बिकॉज रेजिस्टेंस ही नहीं है अभी। सो करीब जब जहाँ पे वार्निंग सिग्नल जा रहा है, सो दिस कंडीशन इज अराउंड 37-36 के करीब हो गई है, बिकॉज वार्निंग आ रही है और जा रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको पोटेंशियोमीटर हम कैसे यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर को यूज करने में कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। सर T1 का क्या होगा? T1 विल बी ओपन एंडेड, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो अल्टीमेटली है क्या चीज ये, हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर अल्टीमेटली तो रेजिस्टेंस ही है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा लेट मी, अगर आपने सर्किट्स पढ़े होंगे, लेट मी अगेन गो बैक टू माय वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, शेयर, या ठीक है, तो अगर आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑफ दिस फैशन, जो सिंबल होता है। ऐसे करके यूज करते हैं। तो ये सर्किट का, सपोज ये सर्किट का एक टर्मिनल, ये सर्किट का दूसरा टर्मिनल, ऐसा होता है। एंड ये आपका ये जो है, लेट मी, ये जो है चीज, दिस इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे क्या होता है, जो एक्चुअल जो रेजिस्टर होता है, टोटल रेजिस्टर, उसका केवल एक टर्मिनल यूज करते हैं, दूसरा टर्मिनल होता है ओपन एंडेड, उसको हम यूज नहीं करते हैं। एंड चाहे इसको वाइपर बोल लो या जॉकी बोल लो, ये जो मूविंग पार्ट है वो डिसाइड करता है आपके मूवमेंट से, आप मूव करेंगे इधर से उधर तो आप डिसाइड कर पाते हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यू वांट टू चूज। अगर आप इस पोजीशन पे हैं, दैट मींस एक्सट्रीमली लेफ्ट में है, सो you'll गेट अ वैल्यू ऑफ 0 ohms,
एंड अगर आप एक्सट्रीम राइट पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, सो विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यू, जो सपोज जैसे हमने इस केस में कितनी ली थी, 100 ओम्स ली थी, ठीक है। और बीच में आपको वही अकॉर्डिंगली वैल्यू मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन आप किस पोजीशन पे हैं। एंड पोजीशन भी कैसे डिफाइन होती है, वी नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर के अकॉर्डिंग है, तो लीनियरली आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका लीनियरली डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ था, हाँ ये 12th में आपने सीखा होगा। तो अगर बेसिकली अगर आपके पास 100 ओम का पोटेंशियोमीटर है और ये आपकी डायल है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी डायल की वैल्यू एक्सट्रीमली बीच में है, बिल्कुल बीच में है, तो क्या होगा, मिडवे मतलब L/2, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/2, तो 50 ओम मिलेगा बीच में। 1/4 वाले में है तो 25 ओम मिलेगा। 3/4 में है तो हमें मिलेगा 75 ओम्स, डिपेंडिंग कि किस पोजीशन पे आपका नॉब लगा हुआ है। सर रेजिस्टेंस अगर हटा दिया जाए सर्किट से तो क्या होगा, तो द अमाउंट ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू योर डिवाइस, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट विच यू आर पासिंग थ्रू द डिवाइस वो एक्सीड कर जा रहा था। तो हमने यही देखा था कि अराउंड 60 विदाउट रेजिस्टेंस 61.9 मिली एम्पियर करंट जा रहा था एलईडी से, विच वॉज हायर देन दैट वाज रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड था, 20 मिली एम्पियर रिक्वायर्ड था, 61.9 जा रहा था, एक्स्ट्रा करंट जा रहा था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि उस एक्स्ट्रा करंट को हम कहीं पे यूटिलाइज कर लें। तो हमने यूटिलाइज कहाँ कराया, हमने इसको ड्रॉप करवा लिया, कहाँ पे, रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस जब आया तो उसने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ले लिया, जिसने उसने कुछ करंट यूटिलाइज कर लिया, और बाकी का करंट क्या था, जब जो नेट करंट जो जा रहा था वो कितना जा रहा था, 20 से कम, 20 मिली एम्प से कुछ कम, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू सर्किट्स, शेयर, ओके। सो अभी हमें पोटेंशियोमीटर कैसे यूज करते हैं हमें वो समझ में आ गया, ठीक है। Now let's go back and see what. ओके, तो यूजुअली सब मोस्टली आपके पास क्या होता है, आपके पास ये कॉइन सेल तो नहीं होता, ठीक है। आपको जो सबसे सस्ती चीज मिलती है यूज करने के लिए वो मिलती है आपको बैटरी 9 वोल्ट की, ठीक है, आपको ये वाली बैटरी मिल जाती है, ठीक है। लेट्स सी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। इसको एक काम करते हैं, वापस से इसको घुमा देते हैं, या सो दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज, ये क्या किया मैंने, anyway, so this one is positive terminal and this one is negative terminal. Now let's start the simulation and now see what happened. ये जो सिंबल आ रहा है ये हो गया कि अब जो मैक्सिमम कर, ये बेसिकली आपका आपकी जो बैट आपकी जो एलईडी है वो ब्लास्ट हो चुकी है, ठीक है। इट्स वेल पास द पीक करंट जो वो झेल सकता था, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पियर विच इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मतलब बेसिकली इससे ऊपर जा चुकी थी, करंट तो बहुत जा चुका होगा। एंड व्हाट हैपेंड इज आपकी जो एलईडी है वो ब्लास्ट कर गई, ठीक है। तो आप यूजुअली जो 9 वोल्ट या 12 वोल्ट से अगर आप एलईडीज लगा देंगे 5 mm वाली, तो क्या हो जाएगा, ये फट जाएगी एलईडी, आपकी गर्म हो जाएगी और फट जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारे पास तो 9 वोल्ट की बैटरी है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब हमारी ये है कि हमारे पास जो बैटरी है वो केवल 9 वोल्ट की है। तो हम 9 वोल्ट को कैसे करें, या अब यहाँ पे भी अगेन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग, रेजिस्टेंस करता क्या है, वो एनर्जी का ड्रॉप करवाता है, इट इज कंज्यूमिंग एनर्जी। 9 वोल्ट की एनर्जी ज्यादा थी, है ना। तो यूजुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक और टेक्निक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर्स की आईसी होती हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी क्या होगी, इट स्टार्ट्स विद एल एम, ठीक है, इट स्टार्ट्स विद एल एम। और जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो है LM7805, ठीक है। तो LM7805 बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। ये वाली 5 वोल्ट के लिए है, ऑल्दो आपके पास 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट ये भी आती है।
तो जो आपका सपोज कोई आपका प्रोजेक्ट है विच रिक्वायर्स 6 वोल्ट्स, या कोई प्रोजेक्ट है विच रिक्वायर्स से 9 वोल्ट्स या 12 वोल्ट्स, पर आपके पास ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है, तो इट्स बेटर यू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, जो वोल्टेज आ रहा है उसी को आप रेगुलेट कर लीजिए। सर वोल्टेज रेगुलेटर एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या करता है? वो यूटिलाइज ही नहीं होने देता, वो जो है यूटिलाइज नहीं होगा। वो मतलब जो वोल्ट बेसिकली क्या होता है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपको जब मिलता है और उससे जब सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो करता है। अब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था, उस ज्यादा करंट को फ्लो करवाने कम करवाने के लिए आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम वोल्टेज को ही कम कर देते हैं। नहीं, सम सर्टेन वोल्टेज सर्टेन एनर्जी गेट्स वेस्टेड, ऐसा नहीं है। तो आइडियल केस में नहीं करना चाहिए, बट सर्टेन जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है, रियलिस्टिक सिनेरियो में जो आपकी एनर्जी है सर्टेन वेस्ट हो जाती है, बट दैट विल बी लेसर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेड ऑन रेजिस्टेंसेज या बाय रेजिस्टेंसेज, जब आप करंट को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे हमने वोल्टेज को डिक्रीज कर लिया। ठीक है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो 5 वोल्ट्स की हमारे पास ये आईसी थी, आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये जो आईसी है वो हमारी कौन सी आईसी है? इसका नाम क्या है? LM7805। 05 स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ वोल्टेज जिसमें हम जिस जिस पॉइंट पे हम रेगुलेट करना चाहते हैं, या जिस एनर्जी जिस पोटेंशियल को हम देना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 पिंस आपको अगेन दिख रहे होंगे। द लेफ्ट मोस्ट इज फॉर इनपुट, the middle one is for ground and the right one is for output। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले अब इन वायर्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इस इस एलईडी को हमें रेगुलेटेड वोल्टेज देना है। अब रेगुलेटेड वोल्टेज देने के लिए आउटपुट जो है वो एलईडी में जाना चाहिए। इनपुट कहाँ से आएगा? तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, 9 वोल्ट की हमारे पास 9 वोल्ट की हमारे पास बैटरी थी और हमें एलईडी में देना था। ठीक है, अब एलईडी में डायरेक्टली नहीं देना चाहते बिकॉज काफी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो हमने क्या करा, इसको एक रेगुलेटर से पास करवाया, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी से पास करवाया। अब वो कैसे पास करवाएंगे? तो 9 वोल्ट को हम देंगे इनपुट में। 9 वोल्ट को हमने इनपुट में दे दिया। तो इस रेगुलेटर का काम क्या है कि जो भी इनपुट वोल्टेज आए उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन द वोल्टेज इज हायर देन 5 वोल्ट। ऐसा नहीं होगा कि आपने 0 वोल्ट की आप 0.2 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड करी और वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज अगर आप देंगे, 9 जैसे 5 वोल्ट से ग्रेटर वोल्टेज आ रहा होगा तो दैट विल कट इट डाउन टू 5 वोल्ट्स। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव है दैट रिप्रेजेंट्स ग्राउंड, वो भी आया, और ये बीच वाली पिन विच सेज ग्राउंड यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कलर दीज एज वेल। तो इसको मैंने दे दिया ब्लैक। समथिंग रॉन्ग विथ दिस। लेट्स लीव इट। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव को जो 9 वोल्ट जो इनपुट हमारी सप्लाई थी हमने उसको इन वाली पिन में दे दिया, ग्राउंड को हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें देना है। लेट मी रोटेट दिस, या ठीक है, तो अगेन ग्राउंड जो है विच इज नेगेटिव टर्मिनल, वो कहाँ जाएगा? वो जाना चाहिए कैथोड में, छोटी वाली पिन में। तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेकर आया और इसको ऊपर कर दिया। दिस वन इज नाउ ग्राउंडेड एंड इसको जो आउटपुट था, आउटपुट विल गिव नाउ 5 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा 5 वोल्ट्स आ रहा होगा। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। अगेन 5 वोल्ट में भी ये फट गई। ठीक है, 481 मिली एम्प्स करंट चला गया। नाउ लेट्स फाइनली ऐड अ रेजिस्टेंस एज वेल। इसको थोड़ा और दूर करते हैं। लेट्स स्टॉप द सिमुलेशन फर्स्ट। इसको पीछे करते हैं और इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
ओके ये इस टर्मिनल में और ये डायरेक्टली इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देते हैं, लेट्स से 60 ओम्स। 60 ओम्स हो गया। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। अभी भी ये कुछ ज़्यादा है क्योंकि 5 वोल्ट में रेजिस्टेंस और ज़्यादा लग रहा है, तो लेट्स मेक इट 100। 100 में भी प्रॉब्लम है, लेट्स मेक इट 110। ओके इसमें भी दिक्कत है 150, सो 150 इज फाइन। तो अराउंड 150 हमने ओम का रेजिस्टेंस लिया है। अब आपको समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पे। 9 वोल्ट की बैटरी थी हमारे पास, उसको हमने कट डाउन कर दिया 5 वोल्ट्स में। 5 वोल्ट्स आगे पावर अप कर रहा है किसको, हमारी एलईडी को। ठीक है, तो जैसे सपोज आपके पास आर्डिनो है सपोज, या कोई और माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है जो 5 वोल्ट वोल्टेज लेवल पे काम करता है, और 9 वोल्ट से अगर उसको पावर अप करना पड़ेगा, सो यू कैन यूज एन आईसी ऑफ सच काइंड, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी ऑफ सच काइंड, जो आपको कट डाउन करके दे दे। ठीक है, आप ये देखेंगे भी जितने भी आपके स्मार्टफोन सर्किट्स भी होते हैं, स्मार्टफोन्स में नहीं, ये स्मार्टफोन्स में भी होता है वैसे, या आप आर्डिनो भी देखेंगे, तो जहाँ पे इनपुट वोल्टेज की जगह होती है उसके आगे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगती ही है। क्या किसी को डाउट है? इतिशा कैन यू म्यूट योर माइक? हेलो सर। हाँ सर ये मैक्सिमम कितने वोल्टेज को सर ये कट डाउन कर सकता है ये वोल्टेज मैक्सिमम कितने रेगुलेटर? वोल्टेज को, इसका भी स्पेसिफिकेशन से हम देख सकते हैं। सो दैट वेरीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। आप अगेन क्या करेंगे, जो आपके पास आईसी है LM7805 आईसी है, उसको मैन्युफैक्चरर आप देखिए कौन है, उसकी डेटा शीट पे जाइए, उसमें मेंशन होगा कि इतना मैक्सिमम वोल्टेज से ये कट डाउन कर सकता है। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आप एक क्वेश्चन आया था कि ये जो सिल्वर पार्ट है वो क्या है, तो सिल्वर पार्ट बेसिकली ये हीट सिंक होता है। इसके दो पर्पस होते हैं। ये हीट सिंक बेसिकली क्या करता है कि ये आईसीज यूजुअली गर्म हो जाती हैं, तो ये एल्यूमिनियम का होता है यूजुअली, और ये क्या करता है, एक लार्जर सरफेस एरिया देता है फॉर द हीट टू डिसिपेट। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ एरिया जो होगा, जो एक्सपोज होगा एयर से, वो बढ़ जाएगा, और जितना बड़ा एरिया होगा उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा, या उतना हमें ठंडक मिल जाएगी। ठीक है, और दिस एल्यूमिनियम जो प्लेट है, ये हीट सिंक है, वो कनेक्टेड होता है ग्राउंड से। ठीक है, तो आप अगर ग्राउंड से कनेक्शन करना है इस आईसी का, तो आप इसके हीट सिंक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका हीट सिंक बेसिकली ग्राउंड ही होता है। ठीक है, तो हीट सिंक के दो पर्पस होगा, एक तो ये हीट डिसिपेट करने में हेल्प करता है, और दूसरा ये ग्राउंड का भी काम करता है। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ विनय बोलो। सर आप मिनिमम एलईडी में करंट कितना पहुंच रहा होगा इस टाइम में से? इस टाइम 20 एम्पियर से कम होगा, और लेट्स फाइंड दैट आउट कि कितना होता है। तो मल्टीमीटर ये रहा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर हो गया। अब हम करंट मेजर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मोड में जाते हैं हम, लेट्स चूज द मोड टू एम्परेज। ठीक है, हमें पता करना है कि एलईडी में करंट कितना फ्लो कर रहा है। सो लेट्स डिलीट दिस सेक्शन। ये नेगेटिव में चला गया, और ये वाला निकाल के हमने पॉजिटिव में लगा दिया। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। तो हमें दिख पा रहा है कि -19.5 मिली एम्पियर्स फ्लो कर रहा है। माइनस क्यों कर रहा है देखो, क्योंकि ये आउटपुट से आ रहा था विच वॉज पॉजिटिव टर्मिनल।
तो पॉजिटिव टर्मिनल को बेसिकली हमने उल्टा लगा दिया, नेगेटिव में लगा दिया, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द करंट इज कमिंग टू बी नेगेटिव। बट जो वैल्यू बेसिकली हमारा जो करंट काम कर रहा है, जितना करंट सॉरी एलईडी में जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 19.5 मिली एम्पियर। सो मल्टीमीटर से ऐसे सीरीज में लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको वापस से कट डाउन करते हैं। लेट्स स्टॉप द सिमुलेशन एंड एलिमिनेट एलईडी दिस रेजिस्टर एंड ट्राई टू फिगर आउट कि जितना जो बोलना है बोल रहा है आईसी, जो बोल रहा है कि 5 वोल्ट का आउटपुट देता है, वो उतना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स स्विच इट टू वोल्टेज। मैंने इसको वोल्टेज मोड पे सेट कर दिया है। आई विल कनेक्ट आउटपुट पॉजिटिव में, आउटपुट को मैंने लगा दिया यहाँ पे, और ग्राउंड को मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और ये सॉरी ये या तो ग्राउंड कनेक्ट हो चुका है। ग्राउंड को ग्राउंड से कर दिया मैंने, नेगेटिव को ग्राउंड से कर दिया, आउटपुट को 5 यहाँ पे कर दिया मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल से कर दिया। आई स्टार्ट द सिमुलेशन एंड सी द अमाउंट ऑफ वोल्टेज। सो इट इज एग्जैक्टली 5 वोल्ट्स। क्योंकि सिमुलेशन है तो आइडियली 5 वोल्ट्स देगा। आपकी आईसी थोड़ा सा प्लस माइनस का एरर दे सकती है, क्योंकि वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकती है, क्वालिटी में थोड़ा खराब हो सकती है। तो दैट वे आपको 5 वोल्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आपको रेगुलेटर आईसी कैसे काम कर रही है। फिर आपने क्या देख लिया, अब मल्टीमीटर का भी देख लिया, ठीक है। मल्टीमीटर कैसे काम कर रहा है, तो मल्टीमीटर सिमुलेशन बेसिकली कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछे। ओके, नाउ लेट्स डिलीट ऑल दीज, लेट्स कीप दिस 9 वोल्ट मोटर। आरजीबी के साथ आप टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट लाइट्स को देखे कैसे, मतलब कैसे फ्लो करेगी। लेट्स ब्रिंग आवर मोटर नाउ, MOTOR, ठीक है। सो दिस इज आवर डीसी मोटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ दैट दिस इज फंक्शनिंग। तो अभी मैंने क्या किया, इसको जूम इन करते हैं, इसको और पास ले आता हूँ या। तो मैं अभी डायरेक्ट कनेक्शंस कर रहा हूँ, टर्मिनल को पॉजिटिव से एंड इसको ऐसे। तो अब आप देखेंगे रेड को ब्लैक और ब्लैक को रेड से किया है मैंने, मोटर और बैटरी के। नाउ लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। तो व्हाट वी सी इज, एक मेंशन्ड हो रहा है नंबर माइनस का 17568 आरपीएम। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रोटेशंस पर मिनट, कि कितने कंप्लीट चक्कर लगा रहा है एक सेकंड, एक मिनट के अंदर। एंड द नंबर ऑफ रोटेशंस इज 17568, 17,568 चक्कर लगा रहा है ये एक मिनट के अंदर। एंड द माइनस साइन रिप्रेजेंट्स कि जो रोटेशन है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी एक्सचेंज द टर्मिनल्स, ठीक है। जो कनेक्शन की पोलैरिटी अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या हो गया। तो लेट्स मेक अ क्रॉस कनेक्शन, रेड को रेड के साथ ही ब्लैक को ब्लैक के साथ, एंड लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। नाउ वी सी द रोटेशन डायरेक्शन हैज चेंज्ड। द रोटेशन की जो नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इफ यू कैन सी, लेट मी जूम इट इन। सो यू सी इट इज हाउ मच, 17568 आरपीएम विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। दैट मीन्स द रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो पहले आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, देन आपका वो क्लॉकवाइज चलने लगा, ठीक है। सो कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट आईसी। आईसी बेसिकली, अब जैसे एक सर्किट होता है, आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बनाया एंड आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया और बहुत छोटा कर दिया और एक सिंगल बोर्ड पे लगा दिया, सिंगल ब्लैक पोर्शन पे लगा दिया। तो बेसिकली वही होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, एक साथ कर देना पूरा सबको एक छोटे से पोर्शन में। सो दैट इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली अभी हमने देखा कि हम पोलैरिटी जो चेंज कर देते हैं बैटरी की, और हम देखते हैं कि जो रोटेशन है वो रिवर्स हो जाता है एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ कंट्रोलर फॉर दिस मोटर, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। लेट मी रोटेट दिस बैटरी। इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ये पॉजिटिव ऊपर वाला, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ऊपर कर दिया। लेट मी जूम इन।
ओके, ये हमारी मोटर हो गई। तो जैसा हमने कल बनाया था मैं वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा टर्मिनल हो गया ऊपर से आता हुआ, ये दो में स्प्लिट करेगा। और लेट्स डू वन थिंग, पहले हम वो लगा लेते हैं, ट्रांजिस्टर्स अब लगा लेते हैं, या ट्रांजिस्टर की बजाय पहले स्विचेस से देखते हैं। पुश बटन, ठीक है। तो लेट्स डुप्लीकेट दिस, लेट्स कॉपी पेस्ट, एक और आ गया, कॉपी पेस्ट, नीचे आ गया, कॉपी पेस्ट, इधर आ गया, ठीक है। ये चार स्विचेस हैं। नाउ व्हाट विल डू इज विल ब्रिंग पॉजिटिव यहाँ से ऊपर, ऊपर से यहाँ, यहाँ से नीचे, नीचे से इधर जाता हुआ। लेट मी यूज पिन नंबर ए जो हमने नेम दिया था, ठीक है। अब फिर हम एक और निकालेंगे यहाँ से, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ से, ठीक है। लेट्स डू द सेम फॉर नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड दोनों जगह जाना है। तो मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा ग्राउंड को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इसको यहाँ कर दिया, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखो ग्राउंड जा रहा था, इन दोनों जगह पे ग्राउंड जा रहा है, और इन दोनों जगह पे हमारा जा रहा है 9 वोल्ट। और हमें पता है कि जब हम बटन प्रेस करते हैं तो डायगनली क्या होता है, डायगनली हमारा कनेक्शंस ज्वाइन हो जाते हैं। सो दिस वन विल गो टू यहाँ पे, एंड डायगनल वाला अगेन विल गो टू यहाँ पे, ये डायगनल से दिस विल गो टू दिस पोजीशन, एंड इसका भी डायगनल वाला विल गो ऑन टू द सेम पोजीशन। तो जो कल हमने सर्किट बनाया था पुश बटन के थ्रू, दैट इज नाउ कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन एंड सॉरी बट दिस सर्किट कैन नॉट बी सिमुलेटेड। ओके एनीवे, तो उसने मना कर दिया, सर्किट सिमुलेट नहीं हो पाएगा। बट एनीवे ये जो हमने कल सर्किट बनाया था वो यही सर्किट है। लेट्स रिप्लेस, अच्छा यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ ले, यहाँ पे किसी को डाउट हो। Sir, why is this happening? Like when we change the polarity between the rotation also is also changing. That is because this is how DC motor functions. ठीक है, डीसी मोटर ऐसे ही वर्क करती है। हम जब चेंज करते हैं तो क्या होता है कि जो इंडक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आई थिंक एक्सप्लेन करने से बेटर आई शेयर अ वीडियो लेटर, ठीक है, कि डीसी मोटर कैसे वर्क करती है। आप कोई एनिमेशन देख लीजिएगा यूट्यूब पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो आपको समझ में आ जाएगा कि पोलैरिटी चेंज करने से कैसे डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन भी बदल जाता है। रेवोल्यूशंस पर मिनट बोलो या रोटेशंस पर मिनट बोलो, तो हम यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहे थे। सो दोनों टर्मिनोलॉजीज एक जैसे ही काम करती हैं। तो आरपीएम को चाहे आप रेवोल्यूशंस बोल लो या रोटेशंस बोल या कंप्लीट रोटेशंस बोलो, एक ही बात है। ओके, सो लेट्स नाउ delete these buttons. Okay, yeah, let me delete this, delete this, delete this. Okay, now I'll search for transistors.
stop simulation. I'll search for transistor. Okay, yeah. So this one is npn types. Let me सर copy paste. हेलो सर हाँ बोलो. सर जैसे आईडी में ना रैम रैम करके एक बटन होती है जो कि उसे अगर मैं बटन दबाने से प्रोग्रामिंग वो जो रीसेट हो जाती है क्या? प्रोग्रामिंग रीसेट हो जाता है का मतलब ये होता है कि जो रीसेट बटन होता है तो वो आर्डिनो Yes, sir. अपने इनिशियल मतलब फिर से स्टार्ट हो जाता है. वो आर्डिनो फिर से स्टार्ट हो जाता है. तो बेसिकली जो आपका जब प्रोग्राम लिखते हो आप दो सेक्शंस में लिखते हो, एक सेटअप एक लूप. तो सेटअप वाला फिर से स्टार्ट हो जाता है. Yes, sir. एक यहाँ रखा, इसको I'll have to rotate, yeah, and then copy paste. इसको ऊपर ले जाते हैं. ठीक है. So this is done. We'll start with the connection again. यहाँ से इधर लेकर गए, इधर लेकर गए. हमें पता है कि हमें ऊपर वाले में लगाना है या नीचे वाले में. एमिटर में लगा दिया मैंने. ठीक है. अब मैं इस एमिटर को दूसरे वाले आगे वाले के ऊपर वाले टर्मिनल से भी जोड़ दूंगा. सो आई जॉइन दिस वन यहाँ पे. ठीक है. तो देखो ऊपर वाले में दोनों जगह पे हमारा 9 वोल्ट चला गया. अब क्या करेंगे, जस्ट लाइक जो हमने उधर किया था. क्या किस में किया था? स्विच बटन में, पुश बटन में किया था. ठीक है. और इसके नीचे वाले को भी इधर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो. सर प्लीज टेल वंस मोर. व्हाट शुड आई रिपीट अभिलाष? ओके. तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने चार अभी हमारे पास इससे पहले जो हमने कल सर्किट देखा भी था, हमने पुश बटन्स देखे थे. ठीक है. पुश बटन में हम जो रेड बटन था उसको हम पुश करते थे और हमें क्या मिलता था, हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे थे फॉर द रोटेशन ऑफ मोटर. सेम काम हम कर रहे हैं बट नाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट इलेक्ट्रिकली. ओके, वी आर ट्राइंग टू डू इट इलेक्ट्रिकली. और वो कैसे कर रहे हैं हम? यूजिंग बाय मेकिंग द यूज ऑफ अ ट्रांजिस्टर. तो ट्रांजिस्टर, हिमांशु प्लीज माइक म्यूट कर दो. क्या केतन में तो लॉग ही नहीं करते, वो 5 रुपये किलो नहीं करते हैं, 1 रुपये घंटे निकलेगी. ₹13 जिया. ये जिया जी का क्लिक कॉल कर रहे हैं. एक बार रुकिए बेटा, हमेशा है. जस्ट अ सेकंड. म्यूट. ओके, या ठीक है. तो अभी हमने क्या किया है, हमने 4 ट्रांजिस्टर्स का यूज किया है एंड वी आर यूजिंग इट जस्ट लाइक वी वर यूजिंग पुश बटन्स, बिकॉज हमें पता है कि हम ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं एज अ स्विच. तो वही हम काम कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली जैसे हम स्विच का यूज कर रहे थे वैसे ही हम ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं. सो डोंट थिंक, अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि विच वन इज एमिटर विच वन इज कलेक्टर. थिंक ऑफ एमिटर एंड कलेक्टर, जो दोनों अपार्ट वाली पिंस हैं वो समझो कि वो डायगनली ऑपोजिट पिंस है पुश बटन की. जो सबसे टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट जो पिंस हैं, थिंक ऑफ इट एज दे आर द डायगनली ऑपोजिट वाली पिंस. और जो बीच वाली पिन है, थिंक ऑफ इट एज रेड बटन. ठीक है. तो वही कर रहे हैं हम. सो विल मेक द कनेक्शंस अकॉर्डिंगली. यहाँ पे आया, यहाँ जाके ऊपर, ये आया यहाँ से इधर, सेम वे ये आया यहाँ से ऊपर, और ये आया यहाँ से नीचे. ठीक है. तो अगेन हमारा एच ब्रिज तैयार हो चुका है. अब बेसिस को सॉर्ट करना है हमें. तो बेसिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मी ब्रिंग देम डाउन ऑल हियर. या सबसे पहले रुको, इसको कैंसिल करते हैं. सो लेट्स कॉल दिस वन, दिस वन इज पिन 1. ओके. अब टर्मिनल्स में भी नहीं आएगा. लेट्स मेक यूज ऑफ अ ब्रेडबोर्ड नाउ. ओके, let us make use of a breadboard. Small.
Okay. Just a second. Yeah. So let us bring this one right on here. Let me bring the second one on pin 7. Third one यहाँ पे, and the fourth one मैंने बहुत मेसी सा भी बनाया है, बट आप कोशिश करिएगा इसको थोड़ा सॉर्टेड बनाए, ठीक है। तो ये 4 पिंस थी ऑफ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसको एनोटेट कर लेते हैं। दिस वन इज ट्रांजिस्टर 1, कॉपी पेस्ट, copy paste, copy paste. Yeah, so let's call this T2, this one T3, and this one T4, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, हमने इसको जस्ट अ सेकेंड, या तो ये जो 4 ट्रांजिस्टर्स थे उनको हमने कनेक्ट कर दिया बाय दिस टर्म, ये T1 के लिए, ये T2 के लिए, ये T3 के लिए, T4 के लिए। अब हमें पता है कि T1 और T2 में हाई देंगे, तो लेट्स ब्रिंग अनदर पावर सप्लाई से ऑफ 5 वोल्ट्स। तो अभी हमने जो ट्रांजिस्टर LM7805 का यूज किया था, तो विल यूज दैट सेम थिंग अगेन टू क्रिएट या टू प्रोवाइड 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। सो LM7805, let's bring this one into picture now. Okay, I'll rotate this, ठीक है। 9 वोल्ट लिया यहाँ से, वो जाएगा इनपुट पे। Let me connect it first and now rotate this one. Yeah, ठीक है। ग्राउंड अगेन जाएगा ग्राउंड में, ओके। एंड अब आउटपुट जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो आउटपुट को मैं अब दे दूंगा यहाँ पे रेड वाली लाइन में, ठीक है। और अगेन ग्राउंड से ग्राउंड मिलने चाहिए, तो ग्राउंड को मैंने यहाँ पे अगेन ठीक है। लेट मी ट्राई टू कलर दिस ब्लैक। पावर वाली को जो मेरी 5 वोल्ट्स है उसको मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, जो 9 वोल्ट्स है उसको मैं रेड कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो ग्राउंड, तो ब्लैक रहेगा ये, ओके। ये जो है दिस शुड बी रेड बिकॉज इट इज 9 वोल्ट। दिस वन ऑल्सो रेड। ये T1, T2, T3, T4 को मैं ग्रीन रहने दूंगा। दिस वन शुड अगेन बी ब्लैक बिकॉज इट इज ग्राउंड। और क्या ग्राउंड है, दिस वन इज अगेन रेड, ठीक है। और ये जो है इसको मैं कर देता हूँ सम अदर कलर से येलो, ये जो मोटर में जा रहा है। आई नो मैंने अरेंजमेंट्स अच्छे से नहीं बनाया है बिकॉज वो थोड़ा टाइम लेते, बट कलर से आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ऑल द ब्लैक लाइन्स represent ground, red line represent 9 volts, orange line represents
5 volts. The green lines are the 4 pins जो हमने ब्रेडबोर्ड पे ले लिए हैं, बिकॉज हमें ट्रांजिस्टर 1, 2, 3 एंड 4 को हमें स्विच करना है, तो हम यहाँ पे स्विच करेंगे. एंड what else is left? Yeah, the yellow lines are the ones जो मोटर से कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर को. ठीक है, यहाँ तक. अच्छा, there are few questions. राघव, ड्रॉप मी अ मेल और मैं आपको ऐड कर लूंगा. आई गेस कुछ रह गया, आपका शायद मेल गलती से मिस आउट हो गया होगा. ओके, व्हाट बीजेटी इज? तो बीजेटी बेसिकली होता है बाइपोलर जंक्शन डायोड. ठीक है, बाइपोलर जंक्शन डायोड, जो बेसिक डायोड्स होते हैं बाइपोलर जंक्शन डायोड्स ही होते हैं. ठीक है, आई एम सॉरी सर, वो गलती से माइक. ओके सर, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम. आई विल डू दैट. सर एक रह गया है ब्लैक, एक कोई ब्लैक रह गया है नीचे वाला. Ground, okay, yeah, this one, yes, this one should also be black. Yeah, ठीक है, अब आई गेस सारे हो चुके हैं. ठीक है, now let's try and see what happens when we start giving information. ठीक है, ट्रांजिस्टर्स को. तो मैंने क्या किया, ये this is T1, this is T2, this is T3 and this is T4. तो डायगोनल वाले को मैं एक्टिवेट करता हूँ. तो T1 एंड T3 को एक्टिवेट करके देखते हैं और T2 एंड T4 को डीएक्टिवेट करके देखते हैं. तो T1 एंड T3 में आएंगे 5 वोल्ट्स. सो यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने जब इस पे माउस ओवर करा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है. दिस रिप्रेजेंट्स कि ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं. ये देखिए, ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं एंड ये आपस में सारे कनेक्टेड है. आई विल जूम इट इन टू, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नेगेटिव वाली रेल है, ये देखिए आपस में सब कनेक्टेड रहती हैं. ये ऐसे ही पॉजिटिव वाली रेल आपस में सारी कनेक्टेड रहती हैं. और इसमें बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो वर्टिकल लाइंस हैं आपस में कनेक्टेड हैं. ये देखिए, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव उठाऊंगा. तो मुझे 1 और 3 में पहले क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव देना है. ठीक है, मुझे उनको एक्टिवेट करना है. तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव एक उठाया और मैं ले आया इसको यहाँ पे T1 पे ले आया. ऐसे ही पॉजिटिव एक और उठाया और मैं ले आया T3 में. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे डीएक्टिवेट करना है T2 और T4 को. तो मैंने क्या किया, नेगेटिव उठाया एंड T2 में ले आया एंड एक और नेगेटिव उठाया, उसको भी T4 में ले आया. ठीक है, तो T1 is getting positive, T3 is getting positive and T2 and T4 are getting negative supplies. ठीक है, now what we will do is, let's see if this simulation works. I guess it won't. No. Anyway, so like ideally what should have happened, ये clockwise rotate करना चाहिए था. और हम क्या करते, जब हम इसको रिप्लेस कर देते, लाइक पॉजिटिव ये T1 एंड T3 को देते नेगेटिव और T2 एंड T4 को देते पॉजिटिव, तो क्या करता है ये, तो वो नेगेटिव में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता. एंड सेम चीज अगर हम करते कि अगर हम पॉजिटिव और दोनों को T1 T2 को हम दे देते पॉजिटिव, तो आपस में ऊपर का शॉर्ट हो जाता. उस केस में क्या होता, ये हमें देता क्या, ब्रेकिंग वाला, मतलब कि रोटेट नहीं कर रहा होता, प्लस हार्ड ब्रेकिंग कर देता है. ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर देखा है इसको हम एच ब्रिज कहते हैं. अब इसी का इंटीग्रेट, अब देखो ये बड़ा खुला हुआ सर्किट है ये. ठीक है, अब व्हाट इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू एन इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसके लिए मार्केट में इंटीग्रेटेड सर्किट आता है बाय द नेम L293D. ठीक है, लेट्स ब्रिंग दिस इनटू पिक्चर. तो ये क्या है, ये हमारा पूरा रिप्लेस कर रहा है कौन कौन से सर्किट को. देखो जो मैं सर्किट हटा दूंगा ना, उन सबको ये इंक्लूड कर रहा है. नाउ लेट्स सी दिस. ये हटा, ये हटा, तो ये सारी जो चीजें मैंने हटा दी हैं इज नाउ रिप्लेस्ड बाय दिस सिंगल आईसी. और ये आईसी का नाम क्या है, दिस वन इज L293D. ठीक है, L293D मोटर
ड्राइवर है डीसी मोटर्स के लिए यूज होता है। एंड बिफोर गेटिंग ऑन टू इट, लेट्स सी हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट एन आईसी इज, लाइक आईसी क्या होती है और कैसे उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये आईसी है। आईसी में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक ऐसा सेमी सर्कल सा कट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉच, NOTCH, नॉच। ठीक है, अब जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, लेट मी कम बैक टू दिस। जस्ट अ सेकेंड। सो I'll stop sharing and start sharing again. Yeah, ठीक है। तो जो आईसी होती है, कोई भी आप आईसी देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि सर्टेन पिंस होती हैं। आई एम ड्राइंग ओनली 5 ऑन ईच साइड। ऊपर आप देखेंगे एक ऐसा सेमी सर्कल होता है, ठीक है, एक कट, एक यहाँ पे एक थोड़ा कट सा होता है सेमी सर्कुलर शेप का, इसको हम कहते हैं नॉच। नहीं। हेलो सर। हेलो। सर जो अभी आपने 4 ट्रांजेक्शन लिए थे, अभी आपने 4 ट्रांजेक्शन लिए थे, 4 ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ। तो सर आपने उसमें मतलब 2 प्लस माइनस होते हैं, या और आप प्लस माइनस कनेक्ट किए थे, बट वो 4 आपने व्हाइट बोर्ड से कनेक्ट किए थे, वो प्लस से या माइनस से किससे कनेक्ट किए थे? मैंने क्या किया था, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, तो ब्रेड बोर्ड पे पॉजिटिव की लाइन थी और एक नेगेटिव की लाइन थी, ठीक है। मैंने क्या किया था, ऊपर से मैं पिंस लेकर आया था ऐसे, एक थी T1, फिर T2, T3 एंड T4, ठीक है। मैंने क्या किया था, T1 एंड लिख देता हूँ मैं पूरा यहाँ पे, T1 था, T2 था, T3 था एंड T4 था। और मैंने क्या किया, मैंने उसमें, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कनेक्शंस की T1 को मैंने दिया था पॉजिटिव, यहाँ ज्वाइन कर दिया, और T3 को पॉजिटिव दे दिया था मैंने, और मैंने T2 और T4 को नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया था ऐसे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर 1 में आया मेरे पास पॉजिटिव, मतलब हाई, मतलब वो एक्टिवेट हो गया। ऐसे ही T3 में भी एक्टिवेट हो गया था। T2 एंड T3 में मेरे पास आए थे ग्राउंड और लो आ गए थे, मतलब। बोलो। सर मैं स्टार्टिंग बात कर रहा हूँ, जो आपने ट्रांजेक्शन लिए थे वहाँ से, वो प्लस से लिए थे माइनस से, ये बोल रहा हूँ। प्लस से लिए थे, स्टार्टिंग में माइनस से जो मतलब? ट्रांजेक्शन, सर स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन आपने जो वायर लिए थे, प्लस से लिया था माइनस से कनेक्ट किया था, ये पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो 2 वायर होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, उससे कनेक्ट किया था आपने। ओके, तो था क्या, देखो, जैसे 3 पिंस थी, यस यही। ठीक है, और नीचे भी थे ट्रांजिस्टर्स। ओके सर। ये ट्रांजिस्टर 1 2 3 और ये ट्रांजिस्टर 1 2 3। मेरी ऊपर से मैंने सपोज ये 9 वोल्ट आ रहा था, ठीक है, बैटरी से 9 वोल्ट आया, तो मैंने 9 वोल्ट को इधर कनेक्ट कर दिया और 9 वोल्ट को इधर कनेक्ट कर दिया, और ग्राउंड को मैंने इस वाले को ग्राउंड से और इस वाले को, दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाले गए मोटर के अंदर, और ये वाला भी गया इधर मोटर के अंदर, ठीक है। अब बचे बीच वाले, ये भी मोटर के अंदर, और बीच वाले बचे, बीच वाले को, ये थे हमारा T1 जो यहाँ पर आया हुआ, देखो ये हमारा T2, ये हमारा T3 बीच वाला, और ये T4। हमने ये कनेक्शंस बनाए थे। तो अगेन आप सोच सकते हो कि पॉजिटिव क्या देना है, नेगेटिव क्या देना है, बट आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इतना ना सोचें। आप ये सोचो कि जैसे ही पुश बटन था, ठीक है, ये पुश बटन है, ठीक है, इसमें 4 पिंस हैं, ठीक है, जिसमें हम डायगोनल में कनेक्शंस करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए भूल जाओ इसके पास 4 पिंस हैं, इसको अब इसको ऐसे सोचो कि इसके पास केवल 2 पिंस हैं, सोचना है बस केवल, ठीक है। हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो सोचो इसके पास केवल 2 पिंस हैं,
ठीक है, अब सोचो जहां पे हम बटन को प्रेस कर रहे हैं वो सोचो वो भी एक पिन है। अब इसको ऐसे सोचना है कि हमारे पास ये जो स्विच है पुश बटन का, वो पुश बटन नहीं, वो भी एक पिन है। ठीक है, ठीक है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं। तो लेट्स नेम दिस 1, लेट्स नेम दिस 2, लेट्स नेम दिस 3। तो हो क्या रहा है, अगर 2 को हम प्रेस करते हैं तो 1 और 3 आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। नाउ थिंक ऑफ दिस एज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर भी ऐसे ही है, 3 पिंस, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो अगर 2 में अगर हम हाई देते हैं या लो देते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1 और 3 आपस में कनेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो डोंट थिंक कि पॉजिटिव दे रहे नेगेटिव दे रहे, एक स्विच की तरह सोचो। 2 में अगर आप पॉजिटिव दोगे तो 1 3 ज्वाइन हो जाएंगे, प्रोवाइडेड ये एनपीएन टाइप का है। एंड 2 में अगर लो देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर एनपीएन टाइप का होगा तो। अब आगे समझ ओके में? सर, ओके सर। नाउ लेट्स कम बैक सर टू दिस आईसी। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे को एक ये चीज थी, आपने जो लास्ट टाइम ब्रेडबोर्ड से अपना कनेक्शन कराए थे ना, हम्म, वो कनेक्शंस तो हो गए, पर सर सिमुलेशन के सिमुलेटर स्टार्ट किया है तो मालूम कैसे पड़ा कि हमारा सर्किट अभी वर्किंग है, क्योंकि कुछ सिमुलेशन शो कर नहीं रहा है। हाँ इसमें सर्टेन सिमुलेशंस एक्टिव नहीं है, तो अगली बार हम फ्रिजिंग में या कोई और में ट्राई कर लेंगे तो वो वहाँ पे शो कर जाएगा। बट सर्किट जो मैंने ओके सर। ड्रॉ किया था वो ठीक था वो। ओके सर। सर ऊपर से एक वाइट सर्कल भी बना आ रहा है। ओके, ठीक है। तो होता क्या है, हाँ जैसे मानवीर ने सही बोला है, तो जो सर्कल बना हुआ आ रहा है वैसे आपके आईसी में सर्कल नहीं यूजुअली नहीं बना हुआ आता, बट अगर बना आ रहा है तो इट्स गुड। तो क्या करेंगे, जहां से जिस साइड से नॉच होगा, तो ये हमारा नॉच था यहाँ पे, उसके लेफ्ट साइड से नॉच अगर टॉप की तरफ फेस कर रही है और हमारी तरफ फेस कर रही है नॉच, तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, 4, 5। देन उसी सेम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमने काउंटिंग कर लिया और हमें पता चल गया कि कौन सी पिन कहाँ पर है। ठीक है, तो दीज आर द पिन नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, आई विल शेयर अनदर वीडियो, अनदर स्क्रीन विद यू एंड सी कि L2 एंड 3D के पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अगर माउस ओवर करें तो हमें पता चल ही जा रहा है। सो सी दिस वन इज एनेबल, एनेबल 1 एंड 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज एनेबल 1 एंड 2, दिस वन इज इनपुट, दिस वन इज आउटपुट, ग्राउंड, ग्राउंड, इसको और जूम कर लेता हूँ, ग्राउंड, आउटपुट 2, इनपुट 2 एंड पावर 2। दिस वन इज पावर 1, आउटपुट 4, आउटपुट 4, इनपुट 4, आउटपुट 4, ground, ground, output 3, input 3 and enable 3 and 4. ठीक है, I checked using push buttons. Sir, in this app we are not able to do two two functions at a time because of we were not able to simulate circuits. Okay. Two functions मतलब अभिलाष, is it working now? सर जैसे दो पुश बटन से एक बार हम लोग हाथ से दबा सकते हैं, पर इस ऐप में हम लोग नहीं दबा सकते हैं ना सर। राइट, तो इसीलिए वर्क नहीं कर रहा होगा, सिंगल पुश बटन वर्क कर हाँ जाएगा। सर। हम्म हाँ सर। हम्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये आईसी है उसमें देखो सबसे पहले है एनेबल 1 एंड 2। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट के लिए देखते हैं, जैसे हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है मोटर। ठीक है, तो गो बैक टू लेट मी गो बैक टू जस्ट अ सेकंड दिस। रखने हैं ओहो।
So let me go back to this and show you how it will work. तो हमने देखा था हमारे पास ट्रांजिस्टर था T1, ट्रांजिस्टर T2, T3 एंड T4 था। ऊपर से आया था हमारे पास यहाँ पे 9 वोल्ट, यहाँ पे आया था हमारे पास ग्राउंड, तो दिस इज ग्राउंड। ऊपर हमारे पास 9 वोल्ट था, ठीक है। यहाँ से ट्रांजिस्टर में गए, ट्रांजिस्टर से आए मोटर में, एंड फिर यहाँ से नीचे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर में कुछ हमारे पास इनपुट्स भी आ रहे थे, यहाँ से हम जो हमने पिंस लिए थे T1, T2, T3, T4 की। अब इसी को नेम करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे नेमिंग होगी, ठीक है। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स यूज ग्रीन। ओके, सो दिस, ये वाली जो पिन है वो 9 वोल्ट की हो गई। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पावर इन द आईसी, ठीक है। दिस T1, T2, T3, T4 ये जो है, दिस इज से इनपुट 1, दिस इज इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। अब उसमें भी सोचो, इसको ऐसे सोचना कि अगर हम T1 एंड T2 को समझना, अगर हम T1 एंड T3 को, सॉरी T1 एंड T3 को ऑन करते हैं, तो T1 एंड T3 को अगर ऑन करते हैं, हाई देते हैं, तो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज में, मान लिया हमने ऐसा। एंड T2 एंड T4 को हाई देते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। सो व्हाट इज स्मार्ट थिंग टू डू इज, इस सर्किट में एक हम करेक्शन करेंगे कि हम T2 एंड T3 को आपस में ज्वाइन कर देंगे, यहां निकाल लिया, एंड T4 एंड T2 को ज्वाइन करके हमने इसको यहां निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दिस इज आवर इनपुट 2, दिस इज आवर इनपुट 1। तो अब क्या है, अगर आप इनपुट 1 में हाई देते हैं तो 2 एंड 4 ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप इनपुट 2 को अगर हाई देते हैं तो वो T2, T3 दोनों हाई हो जाएंगे क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। तो पिंस कम रिक्वायर्ड हुई। तो हमने देखा कि 9 वोल्ट की हो गई पावर, T2, T4 को ज्वाइन करता हुआ इन 1, T1, T2, T3 को ज्वाइन करता हुआ इन 2, और ये हमारा एज इट इज ग्राउंड रहेगा। एंड बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन टू मोटर, तो मोटर आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ये हो जाएगा आउटपुट 1 एंड ये हो जाएगा आउटपुट 2, ठीक है। ठीक है, लेट्स गो बैक टू आर सिमुलेशन सर्किट अगेन। तो आपको ये समझ में तो आ गया। पहले बताओ कि जो अभी मैंने नेमिंग करी है अकॉर्डिंग टू द आईसी इस सर्किट में, वो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? लाइक पावर रिप्रेजेंट्स 9 वोल्ट्स, ग्राउंड रिप्रेजेंट्स ग्राउंड ओनली, और T1 T3 को हमने ज्वाइन कर दिया एंड वी आर कॉलिंग इट इनपुट 2, एंड T2 T4 को ज्वाइन करके हम बोल रहे हैं इनपुट 1, एंड मोटर के जो टर्मिनल्स थे वी आर कॉलिंग इट आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। यहाँ तक कोई इशू हो तो पूछ लो, ठीक है। So let's proceed then. I'll go back to sharing the simulation and let's do that. Okay, and it's done. Yeah. तो इसमें what you see is this one is enable. अब यहाँ पे एक addition आया, enable क्या करता है? So what enable does is, यहाँ पे देखो एक enable ये रहा, एक enable ये रहा, diagonally opposite में है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो basically यहाँ पे देखो आउटपुट कितने आउटपुट दिखता है, आउटपुट 1, दिस वन इज आउटपुट 2, दिस वन इज आउटपुट 3 एंड दिस वन इज आउटपुट 4। ये 4 आउटपुट की पिंस हैं और एक मोटर में 2 आउटपुट की पिन लगती है। दैट मींस 1 L293D इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग 2 मोटर्स, ठीक है। 1 L293D इज एबल टू कंट्रोल 2 मोटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि एक एच ब्रिज लगता है टू कंट्रोल 1 मोटर, तो इस L293D के अंदर 2 एच ब्रिज घुसे हुए हैं, ठीक है। इस L293D के अंदर 2 एच ब्रिज हैं। तो एनेबल क्या करता है, अगर एनेबल पे अगर आप 5 वोल्ट्स की सप्लाई देते हैं, अगर एनेबल पे आप 5 वोल्ट्स की सप्लाई देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, पिन डायग्राम से समझाऊं? ओके, पिन डायग्राम आपको पहले बताओ, सर्किट समझ में आ गया ना? जो L2 जो एच ब्रिज के सर्किट देखा था हमने,
ठीक है। तो वैसे ही एच ब्रिज का सर्किट, ऐसे दो ऐसे एच ब्रिज के सर्किट्स L29 3D IC के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आपको यहाँ पे मेंशन्ड भी है, इफ यू गो ऑन टू द सिमुलेशन, दिस इज एनेबल। एनेबल में अगर आप 5 वोल्ट्स देते हैं तो इट एक्टिवेट्स वन ऑफ द एच ब्रिज, लेट्स से लेफ्ट वाला। अगर आप यहाँ इस enable 3 एंड enable 4 को आप एक्टिवेट करते हैं, यू गिव इट 5 वोल्ट्स, तो क्या होगा, जो सेकंड एच ब्रिज है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। पावर में जाएगा, पावर 2 एंड पावर 1। तो पावर 1 में जाएगा पहले वाली मोटर के लिए पावर सप्लाई 9 वोल्ट्स या 12 वोल्ट जितने के भी मोटर है, ऐसी पावर 2 में जाएगा सेकंड मोटर के लिए पावर सप्लाई, ठीक है। आउटपुट के जो ग्राउंड, तो ग्राउंड हर जगह आपको पता ही कैसे कनेक्शंस होंगे। आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 will go across the motor 1. Output 4 and output 3 will go across motor 2. Input 1 and input 2 will go to 5 volts या ग्राउंड, जहां जो भी आप इसको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो आपका टास्क क्या है, आपको समझ में आ गया कि एच ब्रिज कैसे काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ही दो एच ब्रिजेस आपके L29 3D IC में होते हैं, ठीक है। Now what your task is, you have to simulate and control two motors. You have to simulate and control two motors. तो आप कनेक्शंस बना के आइएगा एंड वील सी कि आपके कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो आपको दो मोटर्स के कनेक्शंस करने हैं। वी कैन रन 12 वोल्ट मोटर विद L29 सी। L29 3D IC पावर नहीं देती है। देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ पिन फॉर पावर, जो एक्सटर्नल सप्लाई आता है इसमें और वो मोटर को जाता है। सो व्हाट L29 3D does is control the power supply that goes from the battery to motor, ठीक है। तो पाथवे ये समझो कि चैनलिंग करता है पावर की, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा वो L29 3D। इसी तरीके से हम डीसी मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं बाय चैनलिंग कि कौन सा पोटेंशियल कहाँ पे जाए, दैट वी आर डूइंग विद L29 3D IC, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सर्किट डायग्राम सिमुलेट करना है। यू हैव टू कंट्रोल टू डीसी मोटर्स यूजिंग वन L29 3D IC विच इज पॉसिबल बिकॉज इसके अंदर दो एच ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। तो दैट्स योर टास्क। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल एंड द सेशन। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, 1 मिनट है अभी आपको। सर वो इनपुट और आउटपुट को डायग्राम वाला समझाइए तो सर, थोड़ा सा रिपीट कर दो। बिल्कुल, आई विल शेयर द स्क्रीन देयर। ओके, दैट्स द वन, या। तो यहाँ पे क्या था देखो, क्योंकि जैसे अब इनपुट आउटपुट भूल जाओ भी कि टर्मिनल्स हैं, आप सोचो पुश बटन्स हैं। तो हमने क्या देखा सर था, एक बार रेफर, क्या सर एक बार रेफर के द्वारा से सर, दोबारा करूं? सर रेफर कर दो सर, इनपुट आउटपुट को, ब्लैक लाइंस को, और कुछ नहीं है। ठीक है, रुको फिर, लेट मी रीड्रॉ दिस। ठीक है, लेट्स चेंज द कलर टू रेड। तो हमारी 9 वोल्ट की सप्लाई थी, 9 वोल्ट की सप्लाई हमारी ये आई, ठीक है। फिर हमारी ग्राउंड था, हमारा नीचे, ठीक है। हमारे ट्रांजिस्टर्स थे कुछ, लेट्स मेक ट्रांजिस्टर विद पर्पल। तो ट्रांजिस्टर थे हमारे ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एमिटर है कौन सा कलेक्टर है इस केस में। सो व्हाट विल डू इज, जो ऊपर वाला है हमने उसको दे दिया 9 वोल्ट, इसके ऊपर वाले को भी, ठीक है। फिर हमने इसके नीचे वाले को दे दिया ग्राउंड। आंख बंद करके, हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो एमिटर है कलेक्टर है क्या है, बेस नहीं होना चाहिए, बस सबसे नीचे वाली जो पिन है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें एक मोटर भी चाहिए, तो लेट्स मेक मोटर विद प्लम, ओके। ये हमारी मोटर हो गई, ठीक है। अब मेक येलो कनेक्शंस, ये हमारा ऐसे लगा दी, अंदर वाले जो है हमने मोटर को दे दी दोनों, और इसके भी जो है हमने अंदर दे दिए दोनों मोटर को,
ठीक है, अब बचा बीच वाला। बीच वाले को मैं निकालता हूं बाहर बाय से डार्क ग्रीन। इसको ये देखो ये बाहर जा रही है, ठीक है। बीच वाली को मैंने आउटवर्ड्स निकाल दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम अगर इसको और इसको एक्टिवेट करते हैं तो क्लॉकवाइज घूमेगी, ऐसा मान रहे हैं अभी हम कि क्लॉकवाइज घूम रही है। और इसको और इसको हम अगर एक्टिवेट करते हैं हाई देके तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि दोनों दो को साथ में ऑपरेट करना है, केवल एक को ऑपरेट करने से काम नहीं चलेगा। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल join these two and we will join these two। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया दिस इज नाउ आवर इनपुट 1, दिस इज नाउ आवर इनपुट 2। ठीक है, इनपुट 1 में अगर मैं हाई दूंगा, अगर इसको एक्टिवेट करता हूं तो एक लेट्स अज्यूम कि क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर इसको एक्टिवेट करता हूं तो इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग क्या हो गई, दिस पॉजिटिव 9 वोल्ट या 12 वोल्ट इज नोन एज पावर, जितनी रिक्वायर्ड होगी आपके मोटर को। दिस वन इज ग्राउंड। ये हमारा हो गया आउटपुट 1, ये हमारा हो गया आउटपुट 2, ये हमारा इनपुट 1, ये हमारा हो गया इनपुट 2। ठीक है, और इस सर्किट को एनेबल करने के लिए आपके पास पिन है एनेबल, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 5 वोल्ट्स। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। ट्रांजिस्टर्स तो अंदर है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे देना है 5 वोल्ट या ग्राउंड। यहाँ पे भी आपको देना है क्या, 5 वोल्ट या ग्राउंड टू एक्टिवेट या डीएक्टिवेट दिस सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मोटर के कनेक्शंस करने हैं आपको आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 से, खत्म, इजी है। एक बार ट्राई करना। अब कोई इशू हो तो बताओ किसी को। सर क्या उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, इसका यूज हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके नहीं कर सकते। डीसी मोटर की स्पीड को नहीं कंट्रोल कर सकते यूजिंग L29 3D। अगर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सो व्हाट हैपेंस इज, इसका भी एक डेटा शीट होती है मोटर की भी। एंड आपको क्या होगा कि ये सपोज ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ जो मोटर को मिल रहा है, और ये सपोज पीक होगा रेटेड वोल्टेज पे। लेट्स से रेटेड वोल्टेज इसका 12 वोल्ट्स है, तो 12 वोल्ट्स पे मैक्सिमम आउटपुट स्पीड देगी, आउटपुट रोटेशन स्पीड देगी। और आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल को तो दैट स्पीड विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। तो आप वोल्टेज का यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द स्पीड, बट नॉट यूजिंग L29 3D, क्योंकि L29 3D क्या करता है, केवल चैनल करता है पावर को, पावर की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा, L29 3D चैनल करता है पावर को कि कौन से टर्मिनल में पॉजिटिव जाएगा, कौन से टर्मिनल में नेगेटिव जाएगा। इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ पावर दैट इज कमिंग टू द सर्किट। I'll do that, I'll upload the day 2 session also। सर इस आईसी का क्या यूज है? इस आईसी का यूज है टू कंट्रोल द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ मोटर, फॉरवर्ड जाना है, लेफ्ट फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, या ब्रेक करना है। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर आपने जो भी L29 3D वाला बताया था ना सर, उसके कनेक्शंस तो मैंने कर दिए हैं, पर सर जो सिमुलेट कर रहा था तो ये भी सिमुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये उनके लिए था जिनके लिए फ्रिट्जिंग काम नहीं कर रहा है। इन द नेक्स्ट सेशन विल यूज फ्रिट्जिंग, उसमें बेसिकली काम कर जाना चाहिए। ठीक है, और आई विल चेक कि कौन कौन से ये सर्किट्स, कौन कौन से जो सर्किट्स हम यूज करेंगे वो एटलीस्ट उस सिमुलेटर में फंक्शन कर रहे हो, तो आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। ओके सर। ठीक है, तो I don't think there is, so can we run 12 volt motor with L29 3D IC? L29 3D IC को हम हाँ यूज कर सकते हैं 12 वोल्ट के लिए भी, 24 वोल्ट के लिए भी। बाकी आप रेटिंग देख सकते हैं L29 3D की कितनी पावर वो हैंडल कर सकता है। बट ये जो पावर जा रही है इज एक्चुअली द एक्सटर्नल पावर जो चैनल हो रही है, वो L29 3D के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये सोचो कि जो पावर है वो आपका रेस्टोरेंट है। ठीक है, जो पावर है इज योर रेस्टोरेंट, एंड जो L29 3D IC है वो जोमेटो वाला है, वो बेसिकली खाना पहुंचा रहा है आपकी तरफ। इट्स नॉट
eating your food. He's not eating your food. ठीक है? So IC is just channeling that food to motor कि किस डायरेक्शन में इसको वो देना है. पोटेंशियोमीटर का यूज करके मोटर की आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं. यस, बिकॉज रेजिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मोटर विल गेट विल ऑल्सो डिक्रीज. तो इससे आप स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं. हाँ, आई विल डू दैट. कल पाइथन का लेक्चर होगा. कल संडे है, इट्स ऑफ फॉर all of us. What you can do for tomorrow is think of certain projects जो आप कर सकते हैं using what we have taught so far, या अपने हिसाब से भी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है? यू कैन शेयर योर आइडियाज विद मी. मैं कोशिश करूंगा कि आपके आइडियाज को और रिफाइन कर पाऊँ. ठीक है? सो विल एंड द सेशन हियर. कोई डाउट हो तो आप टू द मेल. हाँ, मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं आप. ठीक है? हाँ, आप डिस्कशन भी सारे मेल के थ्रू कर सकते हैं प्रोजेक्ट के. ठीक है? सो आई एम एंडिंग सेशन नाउ. विल सी यू ऑन मंडे. ओके.